Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So this is the first session of our course, whether you have taken the QA 99 or DILR 99. This is the orientation session. So basically in this session we will discuss कि आपको आगे वाली जर्नी में हम कैसे क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे क्लासेस होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, व्हाट वुड हैपन आफ्टर 4 to 5 months, है ना, क्या हमें मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और आपको अपना रूटीन कैसे बनाना है. इफ यू आर ए फ्रेशर और अ रिपीटर, दिस कोर्स इज फॉर यू, राइट? You have already enrolled, so you have to trust blindly to this course for your CAT preparation, right? And there are a lot of reasons for that. We will discuss all the things one by one, right? And it doesn't matter whether you have low academic score or whether your last attempt was not that good, or if you are going for the first attempt, right? Our main motive would be to crack the CAT exam and to score 99 plus at least in quants and DILR for sure, right? And then as you go along with your journey, you will realize or you will face a lot of difficulties, challenges, and we will have different strategies to solve all those things, right? And from my perspective, what I believe is that as soon as we have 9 months, right, till the CAT exam, everyone's objective or motive should be to score as high as possible, and the limit is 100 percentile, right? You should not have some questions like mera itna percentile, I am targeting this college, how much percentile should I target, right? Target should be 100% and target should be I am Ahmedabad. That is very clear for all, right? And obviously it depends on a lot of things, your profile, your ultimate score, and a lot of other things also. But when you start, right, you start with very high targets and with a lot of ambitions, right? So let's move to the next thing. First is who am I? So basically a lot of you already know me, but काफी लोगों को नहीं पता होगा यार कि मेरे exact profile क्या है, right? And about my experience also. So I want to share a little bit about me, right? First is my name is Pallav Goyal and I am currently a student at IIM Ahmedabad. I have been teaching from the last 4 to 5 years, right? And last year also we ran a full-fledged course for the CAT. It was 4 to 5 months course, right? We did pretty well there, and this time we have launched full-fledged 9 months course, right? And I will be graduating this year in March. I have scored 99.99 in the DILR. This is my best score. 99.92 in the quants and 99.46 in the VRC. These are my best scores across all the sections, right? And overall, my best score is 99.98. I scored this in CAT 2022, and my All India rank was 33 at that time. Fine. And I have converted all the colleges. I am Blackie, FMS, MDI, waitlisted at SP JMR and also Auxiliary Jamshedpur, right? And I have scored 99.9 plus 6 time across all the years and across all the exams. So mainly I took CAT, ZAT, and IFT, right? I have taken IFT for the 2 times because abhi to I think IFT is not there, right? But when I started my preparation in when my first attempt was CAT 2020, right? Then IFT exam was there, right? So ZAT, I'm very well versed with the ZAT, CAT, and IFT, right? And OMETs may I haven't appeared yet, but I think their syllabus is almost similar to what you do for the CAT preparation, right? And I take exam every year, and there are multiple reasons for this thing. But आपके लिए जो beneficial है वो यही है कि if you have a person who takes exam every year, because देखो exam अगर तुम every year appear करते हो and if you try to maximize your score during that 2 hours, so it puts a lot of pressure on you. And when you have that pressure or when you experience that type of thing, then only you will be able to understand कि student को actually problem कहाँ होती है, right? अगर मैं वहां पे सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगा and if I do not attempt any question, right, then I will not be able to experience that kind of pressure, right? कि मेरा मेरा पहला सेट नहीं हुआ, सेकंड सेट नहीं हुआ, फिर मुझे प्रेशर आ रहा है, मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, मैं जो सोच के जा रहा हूँ वो वहां पे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, right? So all these things are very, I would say, small things, but has a very large impact, right? तो वहां पे वो चीज समझने में it helps me every year. But बहुत बार मैं सोच के जाता हूँ I will solve all the sets in the DLR, but बहुत बार वो नहीं हो पाता. Sometimes I think कि मेरा VRC section बहुत खराब गया है, but I score 99 plus, right? So in the last 3 years I've been scoring 99 plus in the VRC, and I did not expect it single time. Last year भी मैंने, I mean this year only I attempted the CAT.
और मुझे लगा कि वीआरसी में मेरा बहुत कम स्कोर आएगा, बट आई थिंक आई लैंडेड एट अराउंड 99.5 और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो सो दिस थिंग हेल्प मी अ लॉट टू गेन इनसाइट्स कि स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और किस टाइप की छोटी छोटी डिफिकल्टीज भी एग्जाम में आ सकती हैं। सो फॉर ऑल ऑफ यू, right, who are giving CAT this year, I think this will help you a lot, because I know how the things work during the actual exam and how you should prepare yourself for the D-Day, right? So whatever we will be doing in this course, right, everything will be well aligned with the D-Day, right? हमें D-Day में क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, राइट, कैसे हमें उस प्रेशर को हैंडल करना है, या कैसे, फॉर एग्जांपल लेट्स से DILR की बात करूं, तो DILR में देयर इज ए वेरी हाई टाइम कंस्ट्रेंट, राइट, और वहां पे सेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वो सब चीजें भी हम अलोंग द कोर्स, मेन फोकस उसी पे रहेगा, राइट, प्रैक्टिस पे, सेट सिलेक्शन पे, टाइम प्रेशर पे, ये सब चीजें हम स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर देंगे, रेदर देन डूइंग इट 2 months बिफोर, राइट? एंड एज आई डिस्कस दैट आई फील प्रेशर इन एवरी अटेम्प्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि आई हैव जॉइंड आई एम अहमदाबाद, उसके बाद मैं जो कैट अटेम्प्ट दे रहा हूँ उसमें मुझे कोई प्रेशर फील नहीं होता, ऐसा नहीं होता, राइट? इफ यू आर गोइंग in the exam hall with the mindset ki you want to achieve, let's say, 100 percentile, or you want to maximize your score, then the pressure automatically comes, right? And I hate dreaming without efforts, and this thing I want to make it very clear for all of you, because आपने देखा होगा, since you are starting very early, right, and this is the perfect time to start, but होता क्या है ना कि we dream a lot, we discuss the things a lot, कि यार मेरा इतना परसेंटाइल है, मेरा इतना परसेंटेज है, मुझे क्या टारगेट करना चाहिए, है ना? अभी स्टार्टिंग में होगा कि सर मुझे डेली रूटीन कैसा बनाना चाहिए, 2 मंथ बाद होगा कि सर मेरा तो बैकलॉग आ रहा है, तो मुझे उसको कैसे टैकल करना है। फिर 2-3 महीने कैट से पहले आप डिस्कस करोगे कि सर मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिससे मैं पढ़ के मैं अच्छा स्कोर लेके आ पाऊं, राइट? सो एवरीथिंग डजंट फॉल एट वन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, आप बैकलॉग भी क्रिएट कर रहे हो, आपको पढ़ना भी कम है, आपने टाइम वेस्ट भी कर दिया, है ना? तो ये सब चीजें वर्क नहीं करेंगी, राइट? सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो कुछ ऐसे मिरेकल या रैंडम चीज वहां पे नहीं आएगी कि आपने कुछ नहीं सोचा, आप बिना पढ़े जा रहे हो एग्जाम में और आपका स्कोर बहुत अच्छा आ गया, राइट? बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू एश्योर यू कि अगर आप एफर्ट डालोगे, then you will see the output of that result in either of the exams, या मे बी कैट में आ जाएगा, अगर कैट गलत हो गया तो जेड में आ जाएगा, एनमेट में आ जाएगा, स्नैप में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, राइट? बट अगर आप सोच रहे हो कि आप एफर्ट नहीं डालोगे, बिकॉज सी द पॉइंट इज द जर्नी इज टू लॉन्ग, 9 months, आपका कॉलेज भी होगा या किसी का जॉब होगा, किसी का गैप ईयर होगा, कुछ भी होगा, है ना? और डेली 2-3 hours के एफर्ट्स डालना इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। और एज वी अप्रोच टू द जुलाई और अगस्त मंथ, तो वहां पे मॉक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका कंपटीशन भी हाई हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी होने लग जाती है चीजें, राइट? सो वहां पे आपको स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। लेट्स से द नेक्स्ट 2 months, राइट, इट वुड नॉट बी I would say that intensive for you, because we will be doing the syllabus at a very normal pace. तो वहां से ही अभी आप स्टार्टिंग से ही अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो कि यार अगर मुझे कुछ चीजें करनी है तो करनी ही है। अगर मुझे 2 घंटे रोज क्वांट्स को देने हैं या कोई भी सब्जेक्ट को देने हैं, तो आई विल डू दैट एट एनी कॉस्ट। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जब आपको चीजें आती होंगी ना, तब आपको एग्जाम देने का इतना मजा आएगा, है ना? बिकॉज फिर चीजें आपको बहुत सिंपल लगेंगी। वही चीज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम एग्जाम में देख रहे हो, नो वन विल बी एबल टू डू दैट, इवन द टीचर्स विल नॉट बी एबल टू डू दैट। हमने अगर क्वेश्चंस देखे हुए हैं तभी हम वहां पे एग्जाम में वो क्वेश्चन 60 सेकंड में बना पाते हैं। अगर कोई बच्चा एक सेट को बनाने में 60 मिनट ले रहा है और एक बच्चा 10 मिनट्स ले रहा है, दैट मीन्स समवेयर दैट पर्सन हैज ऑलरेडी सीन दैट काइंड ऑफ सेट, तभी वो उसको पता है कि उसको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कैसे चीजों को चलाना है, एंड तभी वो कर पाएगा। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सी अल्टीमेटली आपको अगर टॉपिक्स करने हैं तो उसको कंसेप्चुअली भी पढ़ना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, मिस्टेक्स भी करनी पड़ेंगी, उससे लर्निंग भी लेनी पड़ेगी। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टार्ट अर्ली और वेदर यू वांट टू डू ऑल दोज थिंग्स इन द मंथ ऑफ, लेट्स से, अगस्त और सितंबर, राइट? तो वो आपको डिसाइड करना है। बट आई हैव सीन मल्टीपल केसेस जहां पे बस लोग बोलते हैं कि सर मैं इतना आवर दूंगा। काफी लोग ये क्वेरी लेके आते हैं कि सर मैं दिन का 1 घंटा पढूं तो बहुत रहेगा, राइट? आई ऑलवेज से कि यार तू दिन में 1 घंटे की जगह 50 मिनट्स पढ़, बट कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं है कि आज तुमने 5 दिन तुम बहुत मोटिवेटेड हो, तुमने पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हें लगने लगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, राइट? इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, राइट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सभी लोगों को सब कुछ पहली बार में समझ आ जाता है, राइट? इफ यू आर स्ट्रगलिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम,
or at some subject, you have to do it, right? You have to repeat that thing multiple times to gain expertise in that, right? अगर बहुत बच्चों का DLR वीक होता है, किसी का VRC वीक होता है, किसी का क्वांट्स वीक होता है, सो अगर आपका VRC वीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ पैसेजेस। अगर क्वांट्स वीक है तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, राइट? अलग अलग रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज मैं बता दूंगा आपको, सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा, आपके डाउट्स मैं रिजोल्व कर दूंगा, राइट? बट इफ यू कीप कमिंग टू मी कि सर मेरा ये बता दो कि मुझे मोटिवेटेड कैसे रहना है, राइट? सर मैं दिन में 5 मिनट भी नहीं पढ़ पा रहा, मैं आधा घंटा भी नहीं दे पा रहा, आई डोंट नो वेयर माई टाइम इज गोइंग, तो मैं उसका आंसर कुछ बता दूंगा, राइट? दैट चैट जीपीटी कैन ऑल्सो आंसर। बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू पुट द एफर्ट्स इफ यू वांट द रिजल्ट्स, राइट? एंड बहुत चिल्ड प्रेपरेशन रहेगी, आपने अभी स्टार्ट किया है, राइट? सो इन द 9 months वी विल कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज देयर अराउंड द कैट, राइट? मेरे 100% एफर्ट है तो आपके 200-300% एफर्ट होने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट थिंग आई ऑलरेडी हैव एक्सपर्टीज इन दिस एरिया, तो मुझे उतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज कि इट्स हाईली रिलेटेड टू योर फ्यूचर, योर करियर, एंड आपके लिए वो मिस्टेक करना, मैं अगर एग्जाम में मिस्टेक कर दूंगा तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट आपको बहुत एक्सेल बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है एग्जाम के लिए, राइट? एंड उतना उतना भी वो नहीं रहेगा कि अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि यार मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बस हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा चीजें क्लास में कि कैसे किस चीज को कैसे सोल्व करना है, बट प्रैक्टिस एफर्ट्स आपके तरफ से भी आने चाहिए, राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग द क्वांट सिलेबस, राइट? पहले देखते हैं कि क्वांट्स में एक्चुअली होता क्या है, राइट? बिकॉज ए लॉट ऑफ यू माइट बी न्यू टू दिस, सो लेट्स सी। फर्स्ट जो मेजर पार्ट क्वांट्स का होता है वो होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में टॉपिक्स लाइक जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, परसेंटेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, एवरेजेस, यही सब अरिथमेटिक का पार्ट होते हैं। और अरिथमेटिक एक ऐसा चीज है जो आपकी बहुत रियल लाइफ से भी रिलेटेड है, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? तो क्वेश्चन समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अर्थमेटिक में। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द अर्थमेटिक इज दैट इट कवर्स अ मेजर पोर्शन ऑफ एवरी एग्जाम, बी इट कैट, जैट, एनमेट, स्नैप, जीमेट, जो भी एग्जाम है अरिथमेटिक वहां पे होगा ही होगा। और अरिथमेटिक का 40-50% वेटेज भी होता है, एंड इट इज ए श्योर श्योर थिंग। ऐसा नहीं है कि कई साल में चेंज हो रहा है ना, और कम तो कभी भी नहीं आएगा। तो अरिथमेटिक समझना भी इजी है, राइट? उसको प्रैक्टिस करना भी इजी है। एंड जो अरिथमेटिक का डिफिकल्टी लेवल है वो जनरली इजी टू मॉडरेट ही आता है, राइट? ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्टी आएगा नहीं कि जो आप क्वेश्चन कर भी ना पाओ। एक दो क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं जो आपके नए टाइप के होंगे, यू कैन इग्नोर दैट इन द एग्जाम, राइट? और उतना आप सीख ही जाओगे, राइट? बट जनरल जो डिफिकल्टी लेवल आता है अरिथमेटिक का, दैट इज समवेयर इजी टू मॉडरेट ओनली, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस that you will be getting in the exam, right? You must have seen all those kind of question in the assignments or in the class, that is for sure, right? Next is algebra, right? After the arithmetic, I think algebra covers a good amount of portion, right? Again, इसका algebra का difficulty भी I would say easy to moderate ही होता है, राइट? आपने अलजेब्रा में देखो, अलजेब्रा में सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपकी एपी, जीपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, फंक्शंस, राइट? वो सब अलजेब्रा में आ जाता है। और अलजेब्रा में देखो, आपने बहुत लोगों को ये भी सुना होगा कि अलजेब्रा काफी हार्ड होता है, यू शुड स्टार्ट विद द अलजेब्रा, अलजेब्रा में समझ नहीं आता। और एंड इफ यू डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग मैथ्स बैकग्राउंड, राइट, तब भी आपको अलजेब्रा समझ नहीं आएगा। बट आई हैव एन अपोजिट व्यू हियर कि अगर आपने अलजेब्रा को समझा नहीं ड्यूरिंग द क्लासेस, देन ओनली यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि अलजेब्रा में हमें, देखो हमारी क्लासेस में क्या है कि हम बहुत सारे टाइप क्वेश्चंस कवर करते हैं, मतलब हर टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, वी विल कवर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो आप जब क्लासेस अटेंड करोगे, यू विल सी मी सेइंग टाइप 1, टाइप 2 क्वेश्चन, राइट? तो वहां पे हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, टाइप या वैरायटी, राइट? तो अलजेब्रा में हमेशा अगर आपने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं, राइट, तो व्हाट आई बिलीव इज कि अलजेब्रा बहुत इजीली आप सोल्व कर पाओगे और बहुत क्विकली सोल्व कर पाओगे चीजें अलजेब्रा में। मे बी यू कैन सोल्व द क्वेश्चन इन 30-60 सेकंड्स ओनली, राइट? बट अगर आपने वो चीज देखी ही नहीं है, वो टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने कवर नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। अरिथमेटिक में ये होता है कि अगर आपने वो टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा के भी उसको सोल्व कर पाओगे, राइट? बट अलजेब्रा में जनरली क्या होता है ना, इवन इफ यू आर able to solve that type of question, you will take more time than the average candidate, तो वहां पे फिर आपका जो टाइम का कंजम्पशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट? सो
that is one thing about the algebra. Now let's see the another thing, geometry, है ना? ज्योमेट्री में आई होप एवरीवन नोस, बेसिकली हमारे 3 साइडेड और 4 साइडेड फिगर ही आते हैं। 6 साइडेड भी आता है हेक्सागन, है ना? तो मेनली ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, है ना? और इसके अराउंड इसके एरियाज, लेंथ, ये सब कैलकुलेट करनी होती है, मीडियन, बाइसेक्टर्स, है ना? पूरी ज्योमेट्री इसी के अराउंड रिवॉल्व होती है। नाउ व्हाई हैव पुट द क्वेश्चन मार्क्स हियर? ज्योमेट्री का वेटेज थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब in some years you can see there are 1-2 questions from the geometry, and in some years there may be 3-4 questions also, right? Ab, but since we are starting now, we will cover each and everything around the geometry में difficulty level भी थोड़ा सा I would say uncertain होता है, because बहुत बार आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं, और कई जगह क्वेश्चंस में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, है ना? आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, और कई बार एक्चुअल में क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है जहां पे क्वेश्चन आपका 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स भी वेस्ट कर सकता है, एंड इवन आफ्टर दैट देयर इज नो श्योरिटी दैट यू विल गेट द राइट आंसर। सो ज्योमेट्री का थोड़ा सा आई वुड से अनसर्टेन रहती है चीजें when it comes to the portion, or when it comes to the difficulty level, right? And the next part is the number system, right? नंबर सिस्टम से जनरली जो कोर नंबर सिस्टम है ना? नंबर सिस्टम में तो देयर मे बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बट द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड स्पेसिफिकली टू दिस टॉपिक ओनली, वो बहुत कम होते हैं, है ना? बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और जनरली इसका लेवल भी इजी आता है। वाई आई एम सेइंग दिस द लेवल इज इजी? बिकॉज यहाँ पे वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, है ना? ऐसा कुछ नया क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे बिल्कुल आपको कुछ अलग थिंकिंग चाहिए होगी, है ना? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड ओनली। तो यहाँ पे भी हमारा काम थोड़ा इजी ही रहता है, राइट? थोड़े से फॉर्मूलाज ज्यादा होते हैं नंबर सिस्टम में, बट इफ यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल दोस फॉर्मूलाज, then you will not need any other help, right? Modern maths is a very I would say very small part of the entire quant syllabus, and इसमें generally PNC, probability, ये सब topics आते हैं, right? And what I believe is that this is a part of the algebra only, right? काफी लोग इसको modern maths में cover करते हैं, तो but we will cover it under the algebra only, right? And इसका portion is very small. Maybe you may see or may not see 1 or 2 questions around this modern maths, है ना? और कई बार क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल होते हैं, राइट? बहुत चीजें आपने जो पास्ट में की होंगी वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा जो टीटा होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसको सोल्व कैसे करना है, और देयर में भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अराउंड इट। सो अगेन इसका डिफिकल्टी लेवल पे वी कांट कमेंट, है ना? इट चेंजेस एवरी ईयर, राइट? एंड the best thing about the CAT quants is that it covers every other exam that exists, right? ZAT का quants है, NMAT का quants है, SNAP का quants है। अगर आपने CAT का quant अच्छे से पढ़ लिया, or even if you are able to do just 70 to 80% of what I'm going to teach, right, you will be very comfortable when it comes to snap और nmat, because snap में nmat में difficulty level बहुत drop हो जाती है, राइट? और अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स पता है, स्नैप में जैसे आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कैट के सारे फॉर्मूलाज आपको याद है, राइट? और एंड इट मे हैपन कि अगर आपका कैट अच्छा नहीं हुआ, स्नैप बहुत अच्छा भी हो सकता है, बिकॉज स्नैप में बहुत सारी चीजें बहुत इजी लेवल पे है, राइट? सो योर मेन फोकस शुड बी टू कवर द इंटायर क्वांट सिलेबस फॉर द कैट। कैट में अगर कर लिया तो जैट, एनमेट, स्नैप सारी चीजें आपको बहुत डुएबल लगेंगी, राइट? नाउ coming on to the pattern of the cat, right? Especially the quant section, right? Talking about the latest pattern that has been there for the last 3-4 years, you will have 40 minutes and 22 questions to do in that, in those 40 minutes, right? Not a speed game at all. आपको लग रहा होगा आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए, राइट? सिंपल मैथ लगाएंगे कि लेट्स से यू आर टेकिंग 2 मिनट पर क्वेश्चन, राइट? तब भी आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो? 20 क्वेश्चन, राइट? Right, let's say you are taking 4 minutes per question, which is very high, then also you will be able to do 10 questions correctly, that is 30 marks. And आप देख सकते हो 30 marks पे easily you will be able to cross 99 plus at all, right? 30 marks is a very good score in the quant section, ठीक है? तो यहाँ पे स्पीड बेस्ड गेम नहीं है, गेम है आपकी एक्यूरेसी की, राइट? और गेम है कि जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो वो क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 मिनट देके उसको गलत कर रहे हो या वो सोल्व ही नहीं कर रहे, राइट? इफ यू आर गिविंग 4 मिनट टू सम क्वेश्चन, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप 30 सेकंड में भी कर लोगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। मैक्स टू मैक्स एक एवरेज बच्चा उसको 1 मिनट में कर लेगा, राइट? सो दिस इज नॉट अ स्पीड गेम एट ऑल। A lot of students see the quant section as a speed game,
मैंने बहुत सारों को देखा है, जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कितना किया, सर मैंने मॉक में 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 22, और मार्क्स कितना आया, मार्क्स मेरा आया है सर 15। कैन यू सी और इमेजिन व्हाट ही और शी हैज डन, राइट? आपने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दैट मींस 51 मार्क्स। अब 51 पे मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगा? अगर आपने 51 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, 40 तक तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 30 भी कर सकता हूँ, बट 15 आ रहा है, तो दैट मींस कि वो बंदे ने उसको स्पीड गेम समझा, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ स्पीड गेम, राइट? So you have to keep this thing in mind. I think this thing will come at a later stage, right? So but yeah, I hope you got the point कि क्वांट्स में आपको नॉलेज जरूरी है और आपकी एक्यूरेसी का पूरा खेल है, right? Then accuracy matters, as I've already talked about. Very easy to predict or the score, right? What I mean by very easy to predict, the entire quant section is very easy to predict, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आई वुड से रिपीट होते रहते हैं ऑन द ईयरली बेसिस, राइट? सो इफ यू आर डन विद द लेट्स से लास्ट 3 to 4 years, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एकदम डिट्टो है, राइट? एंड वी विल कवर ए लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे वो डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो बहुत बहुत कम बार ऐसा होता है कि इसमें बहुत ही नया टाइप का पेपर आ जाए, राइट? जनरली जो देखा गया इन द लास्ट 6 years, पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है ना? देयर मे बी सम चेंजेस, राइट? बट जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, देन इट विल बी वेरी इजी टू स्कोर, राइट? एंड हाई डुप्लीसिटी इन क्वेश्चंस, बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिमेन सेम। ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि आपका कोई एक एग्जाम में, स्पेशली इन द कैट, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया हो जिसमें आपको वैसा कॉन्सेप्ट लग रहा हो जो मैंने कभी ना देखा हो, राइट? सो वट एवर कॉन्सेप्ट वी कवर इन द क्लास, राइट, उनमें से ही पेपर बनता है, राइट? एंड आई थिंक दिस इज सेम अक्रॉस ऑल द कोचिंग्स, राइट? अगर आप कोई भी मटेरियल लोगे, बिकॉज ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बहुत लॉजिकल पेपर आता है ना? और एक आधा अगर क्वेश्चन कोई आ भी गया बिल्कुल नए टाइप का, सो we will see in the later stage how to tackle all these things, right? And 99 is really not a big deal when it comes to the quants. Believe me, I have seen a lot of students जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, बट कैसे ना कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया, है ना? उन्होंने बस जो उनको आता था ड्यूरिंग द एग्जाम वही किया, राइट? एंड दे स्कोर 99। आप खुद जाके गूगल पे देखना कि 99 कितने स्कोर पे आती है। द स्कोर इज नॉट वेरी हाई एट ऑल, right? And I'm not saying that everyone will achieve the 99 for sure, but the point is ki if you work hard, right, if you understand the things, if you have that concept clarity, then 99 would not be a big deal at all. अगर आपको लग रहा होगा कि 99 percentile is something, a very big task, right, or a very high big achievement, it is not, because of the competition or because of the students with whom you are competing, right? Obviously you will be competing with the students from SRCC, Hindu, IITs, NITs, right, or the toppers in their respective streams, but still I would say 99, आपको ये देखना ही नहीं है कि आप किससे compete कर रहे हो। आपने अपना सिलेबस किया, अपनी प्रैक्टिस की है, और जो आपको आता है अगर आप वो अप्लाई कर रहे हो, राइट, यू विल बी एबल टू रीच दैट at that stage for sure, right? Engineers struggle and non-engineers is, right? So there is also a one misconception कि बहुत सारे engineers हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। I know a lot of you may be the engineers, right, and may not be good at maths, right? A few of you may be the non-engineers and already acing the quant section, right? तो ऐसा होता है, right? ऐसा नहीं है कि एक बंदा कोई एक सेक्शन पे या एक स्ट्रीम का बंदा हमेशा एस करता है, right? So even if you are a non-engineer, if you are coming from the fashion background, from the English honors or other streams, right, still you can ace the CAT exam, right? Now let's discuss about the our plan, right? How we will planning the entire 9 months, right? The structure, the assignments, राइट? फर्स्ट वी विल हैव कॉन्सेप्चुअल क्लास फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। जो भी हम चीज करेंगे पहले उसको हम समझेंगे क्लास में कि वो चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितनी टाइप की वैरायटीज हैं, राइट? एंड द मोड ऑफ द क्लासेस विल बी इंग्लिश, राइट? यू विल हैव फुल अथॉरिटी टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनीथिंग व्हेनेवर you want to, right? And that would be the first thing. First 30, 40, 60 minutes of the class will go to the conceptual clarity around each and every topic, right? Then we will have a lot of in-class questions, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Till the point I get satisfied, we will keep solving the questions of different varieties so that you can get to see कि यार मैं उसको कैसे solve कर रहा हूँ। And whenever I solve any type of question, whether in the live class or in the
मॉक एनालिसिस या आई एम जस्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं उसको उस तरीके से सोल्व करूं वेयर आई एम नॉट यूजिंग एनी फॉर्मूला एंड आई एम ऑल्सो स्पीडिंग अप द इंटायर प्रोसेस, राइट? ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा टाइम लूंगा या बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज करूंगा, एकदम नॉर्मल अप्रोच रहेगी। एंड एवरी स्टूडेंट विल अग्री कि यार ये अप्रोच मैं भी लगा सकता था, राइट? बहुत डुएबल अप्रोच रहती है, राइट? सो वी विल सॉल्व ऑल द कैट क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस थ्रू द बेसिक अप्रोच ओनली। आवर फोकस वुड बी ऑन द बेसिक्स ओनली, राइट? And assignments, right? There will be assignment for each and every topic, right? I think till last year we did not have any assignment, but this year we will have assignments followed by every topic, but assignment will be for your practice only, right? असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 20, 25, 30 डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि कैसा टॉपिक है, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट? तो वो सारे आपको क्वेश्चंस मैं दूंगा, उस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है एंड यू विल हैव जस्ट सॉल्यूशन आई मीन जस्ट आपका एक राइट आंसर दिया होगा कि क्या राइट आंसर है वो क्वेश्चन का, राइट? एंड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट कि आप उसमें सोल्व कर लोगे, राइट? बट वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, है ना, जिसमें यू मे नीड सम हेल्प, राइट? तो वहां पे देर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच वी विल बी टैकलिंग दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट मोटिव है कि आप उसको प्रैक्टिस करो, है ना, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। हमारा फर्स्ट टारगेट ये नहीं है कि आपको उसको सोल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, राइट? आपको 100% एक्यूरेसी नहीं करनी इन द प्रैक्टिस मोड, बस आपको वो क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड करना है। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म देयर, राइट? उसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट, लेट्स से इमीडिएट अगर आपको कुछ डाउट पूछना है, देन टेलीग्राम ग्रुप इज देयर, send your doubt and you can tag me also if there is something urgent, right? I think as soon as you send the doubts in the telegram group, someone will solve it, someone will make you explain. In case nobody replies to that message, I will be there, I will solve that question for you, right? अगर आपको समझ नहीं आया, I will send the voice note, तब भी समझ नहीं आया, then I will create the video solution. That is the 3 step process. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे, है ना, उसके लिए यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन फॉर श्योर, राइट? जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, राइट, वी विल हैव वीडियो सॉल्यूशंस फॉर दैट क्वेश्चन, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर श्योर, राइट? बट मेन जो मोटिव है असाइनमेंट्स का वो यही है कि आप क्वेश्चंस के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, राइट? इन द इनिशियल फेज अगर आप डिफिकल्टी भी फेस कर रहे हो, इफ यू आर टेकिंग मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, it's completely okay, right? Because we are in the, I would say, in a very, in a baby's, how would I put it, इन ए लर्निंग स्टेज ओनली, राइट? अभी हमारा फोकस ये नहीं है कि हमें स्पीड पे काम करना है, हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है, नहीं, अभी हमारा लर्निंग का ही मोटिव है। अगर बाय सॉल्विंग ईच क्वेश्चन यू आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ लर्निंग, देन दैट मीन्स द थिंग्स आर मेकिंग सेंस फॉर यू, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप एक कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वहां से आपको कुछ सीखने का मिल रहा है, राइट? एंड ओवर द टाइम यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस का टाइप रिपीट हो रहा है, राइट? एंड आफ्टर दैट द थिंग्स विल बिकम easy for you, right? Now it's on Telegram and Zoom. We will have obviously we have already created the Telegram group. अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, so there is a process, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, right? And there will be Zoom sessions also where I will be solving whatever doubts you have, right? Whatever doubts you have related to the quants or the DLR, right? And we will soon create one WhatsApp group also. उसका मैं information वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली द एक्सेस विल बी फॉर मी ओनली, right? I will just use that WhatsApp group for the announcement purpose. बाकी कोई भी चीज के लिए you have to refer to the Telegram, right? If you want to ask doubt, if you want to just chit chat, if you want to share memes or whatever you want to talk about, right? Telegram will be there and WhatsApp will be there for the announcement, right? So that you don't miss any important information. देन वी विल हैव मॉक एनालिसिस सेशंस आल्सो, जहां पे मैं आपको बताऊंगा आज आप ये मॉक अटेम्प्ट करो, एंड राइट आफ्टर यू अटेम्प्ट दैट मॉक वी विल प्लान ए मॉक एनालिसिस सेशन जहां पे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस। बिकॉज आप आईएमएस में जाओगे, वहां पे कई कई सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो वी विल सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस विद द क्लास मेथड्स, राइट? एंड वी विल आल्सो डिस्कस कि आपको वो चीज कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए थी, राइट? हाउ यू कुड हैव बेटर अटेम्प्ट दैट टाइप ऑफ सेक्शनल और दैट टाइप ऑफ मॉक, राइट? देन वी विल हैव रिवीजन सेशंस जहां पे हम थोड़ा सा फास्ट पेस में एक बार सारी चीजों को दोबारा डिस्कस करेंगे, डिस्कस इन द सेंस कि आई विल गिव यू अ ब्रॉड व्यू सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, right? Then we will have good PYQ sessions where I will be selecting some good PYQ uh, actual CAT papers,
एंड देन वी विल हैव अ सेशन ऑन दैट कि वो पेपर अगर एक्चुअल में दोबारा आ जाए, राइट, या इफ यू हैड बीन और इफ यू हैड गिवन दैट अटेम्प्ट, तो आपको वहां पे कैसा अपना अटेम्प्ट करना चाहिए था, एंड हाउ यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद द क्लास मेथड्स, राइट। क्लास मेथड्स पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, right? And we will do a lot of other sessions if the time permits, right? Well, let's say we are done and dusted in September or October. Let's say in the September we are done with everything. तो और उसके बाद हमें लग रहा है कि हमारे पास बहुत टाइम है, तो obviously I will introduce a lot of other things also, right? But the classes will keep continuing till the November, right? So you don't need to worry about that. I will be in touch with you till the November and post November also, right? And do not expect anything from your side without efforts, right? And my role would be 40% when it comes to you scoring 99 or 100 percentile, right? And entire credit would go to you only, right, for putting the 100% of your efforts. uh, all right. So some important gyan from my side based on my 4 to 5 years of learning in this segment. No strategy works without knowledge. You will see there will be a lot of YouTube videos, there will be a lot of toppers discussing the strategy, right, which worked for them, but never ever you realize कि वो strategy बनती कैसे है. वो strategy बनती है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, right? Whenever you start practicing hundreds of questions, hundreds of DILR sets, on some days you score very low, on some days you score very high, then over the time you realize ki I am this type of person, I have to make this type of strategy, and this strategy works for me. एंड देन यू ऑल्सो कीप रिफाइनिंग दैट स्ट्रेटेजी कि उस स्ट्रेटेजी में आपको क्या चेंज करना है ताकि आपके लिए वो स्ट्रेटेजी बेस्ट बन जाए, राइट? देर इज नो वन सिंगल स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर लोगे और वो आपके लिए काम कर जाएगी, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन और एवरी एस्पिरेंट इज डिफरेंट. तो मे बी क्वांट्स के लिए आपको कोई और फॉर्मूला वर्क करेगा, डीएलआर के लिए आपको सेट सिलेक्शन किसी और टाइप का वर्क करेगा, मुझे किसी और टाइप का वर्क करता है. सो ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड विद योर सेल्फ, राइट? यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ कि हाँ, मैं पहले यू कैन स्टार्ट विद एनी रैंडम थिंग और यू कैन स्टार्ट विद सम सजेशंस फ्रॉम माय साइड. उसके बाद ओवर द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हंड्रेड्स ऑफ सेट्स, हंड्रेड ऑफ सेक्शनल्स, तब आपको पता लगेगा कि ओके, दिस इज द राइट स्ट्रेटजी दैट वर्क्स फॉर मी एंड दिस इज द पाथ दैट आई विल फॉलो, right? And then after you score 99 or 100, you will also come on the YouTube and talk about your strategy. But that does not mean कि अगर आपको 1000 या 2000 बंदे सुन रहे हैं तो सबके लिए वो स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, राइट? सो नो स्ट्रेटेजी वर्क्स विदाउट नॉलेज. अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि वो डीएलआर सेट में क्या पूछा गया है, वो क्वांट्स का सेट किस टॉपिक से है, क्या उस पर फॉर्मूला लगेगा, देन वो स्ट्रेटेजी भी वर्क नहीं करेगी, राइट? टू मेक द स्ट्रेटेजी वर्क यू शुड हैव द नॉलेज, राइट? कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, राइट? एंड ये चीज सबके साथ होती है, राइट? दिस इज कॉल्ड फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? एंड वी ऑल हैव दिस फियर, राइट, कि यार ये ना छूट जाए, क्या इतना मटेरियल सही रहेगा. एंड देन वी वी ऑल आस्क कि व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल, बेस्ट मटेरियल, मॉक्स, बेस्ट कोचिंग, राइट, बेस्ट टीचर, बेस्ट यूट्यूब चैनल, राइट? वी ऑलवेज रन फॉर द बेस्ट, राइट? एंड ऑब्वियसली दिस इज अ ह्यूमन, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, राइट? जब मैं भी एस्पिरेंट था मुझे भी होता था, एंड आई लिटरली कलेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल, पास्ट ईयर मॉक्स. मुझे ऐसा था मैं पिछले 10 साल के मॉक्स ले लूं, 15 साल के ले लूं, सीएल के, आईएमएस के, टाइम, जहां से भी मिले, जब से मिले, सब मैं कर लूं, राइट? बट लेट मी टेल यू वन थिंग विद माई एक्सपीरियंस, राइट? ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए आपको राइट मटेरियल कौन सा है, कौन सा यूज करना है. बट वंस यू हैव जीरो डाउन की ठीक है, मुझे टाइम का मटेरियल किसी ने बोला है कि ये मटेरियल टाइम का वीआरसी के लिए बेस्ट है, देन स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, राइट? एंड ऑल्सो कीप इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ for the things that you have done in the last 10 to 15 days. For example, maybe you might realize कि 15 दिन पहले मैंने सोचा था कि मैं टाइम के पैसेजेस दिन में 2 करूंगा, बट 15 दिन हो गए मैंने कुछ किया ही नहीं. मैं रोज व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, राइट? मैं ऑफिस से आता हूँ या कॉलेज से आता हूँ, आफ्टर दैट आई वॉच और आई ईट समथिंग, राइट? एंड आफ्टर दैट आई स्पेंड सम टाइम ऑन द सोशल मीडिया, एंड आफ्टर दैट आई टेक माई स्लीप, और आई कीप सर्चिंग फॉर द रैंडम स्टफ, फॉर द रैंडम मटेरियल, राइट? ठीक है? तो यू डोंट नीड टू कवर हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल ही बहुत होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू स्टार्ट विद टाइम मटेरियल और आवर मटेरियल, मेक श्योर कि आप पहले वो तो कवर करो. जब आपने पूरा वो कवर कर लिया उसके बाद यू कैन जंप टू एनी अदर मटेरियल. ट्रू? ठीक है. रिस्पेक्ट व्हाट आई से, राइट? दैट इज द आई मीन माय रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड,
because I believe that I have a very strong hold when it comes to the quants or DILR, especially when it comes to mentoring the students, right? So at least you should respect what I say, right? Obviously, you may have counter arguments to that, right? But at least believe in me, because, for example, let's say the advice that you will be giving at this stage to someone who is doing 10th class or giving 12th class exams, right? तो आप उसको better strategy दे सकते हो rather than his or her friend giving the strategy to him, right? Same works here. I have been through all this journey from and I have been through all this journey, I think, from the last 4 to 5 years I'm in this game, right? So I know कि क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करेंगी, क्या चीजें नहीं बेनिफिट करेंगी, right? So if you take advice, right, please take it seriously, right, when the advice is coming from my side. And hard work beats everything. This I have realized personally over time, right? Because बहुत बार it's not like कि my journey was very smooth, right? uh, I would say कि I did not face a lot of difficulties when it comes to the quant section, but for sure when it comes to the VRC or the DILR, I still face a lot of difficulties, right? And the only mantra, the only strategy, the only jadoo that works to beat or to cross 99 percentile mark is to do hard work, as much as hard work as you can do. अगर हार्ड वर्क करके प्रॉब्लम नहीं आ रहा, देन गिव मी ए कॉल. सर मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा. नाउ टेल मी वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. बट अगर आप मुझसे पूछोगे सर मुझे स्कोर ही नहीं आ रहा, या मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा, देन आई एम नॉट अ संदीप महेश्वरी, या जो मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, राइट, कि हाँ भाई ये सुन लो, ये आप मोटिवेट हो जाओगे, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग, राइट? आई थिंक you should be self motivated at this stage when you are going for the post graduation, right? And chalo, right, any questions regarding to the quants so far, or about how the things will go in the course? uh, do you have a chance to unmute yourself? Let me see. Think you're not getting an option to unmute, right? Any doubt so far? Okay, you are getting the option to unmute. Okay, fine. You can just unmute if you want to say anything. Cool. Sir, Then, yeah. जस्ट वांट टू आस्क कि आप जो शीट्स वगैरह प्रोवाइड करोगे या फिर मटेरियल प्रोवाइड हाँ. करोगे, उसके अलावा क्या अरुण शर्मा या फिर सर्वेश वर्मा का हाँ. करने की रिक्वायरमेंट भी होगी? I have this thing in mind. ठीक है. तो क्या होगा ना कि so I am currently reviewing let's say how many, I think around 10 to 15 types of materials. टाइम, IMS, CL, सर्वेश, अरुण शर्मा और 6-7 और बुक्स हैं, राइट? मैं सबका मटेरियल रिव्यू कर रहा हूँ, राइट? एंड पास्ट मॉक से भी रिव्यू कर रहा हूँ कि क्या हम क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकते हैं असाइनमेंट में जो मोस्ट रेलेवेंट होंगे, राइट, टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट? उसके बाद ऑब्वियसली वी विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट हाँ, कभी अगर आपको ऐसा लगे कि यार मैंने मटेरियल कर लिया, राइट, एंड आई फील कि मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, या आई डिड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन दिस एरिया which I was expecting, तो मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, देन ऑब्वियसली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप मुझे ग्रुप में टैग करो एंड आस्क मी कि सर मुझे ये टॉपिक स्पेसिफिक कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट? सो अकॉर्डिंगली दैट आई विल डू माई रिसर्च एंड टेल यू कि ये मटेरियल आपको रेफर करना चाहिए, राइट? द जनरल थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि टाइम मटेरियल इज द बेस्ट बिकॉज फॉर द क्वांट्स, राइट? क्वांट्स में अगर कभी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आई थिंक यू कैन रेफर टू द टाइम मटेरियल, right? I have all the handouts and all the copies for this in the PDF format, so I can share that also on the Telegram. तो अभी आपके लिए यही करना है. बट इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, राइट? जस्ट मेक श्योर कि आप हर छोटी चीज के लिए नहीं पूछ रहे हो, राइट? देन इट वोंट मेक्स मच सेंस. बट यस, हाँ, अगर आपको जनरली अगर कुछ क्वांट्स का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो देन ऑब्वियसली यू कैन गो टू द टाइम मटेरियल, यू कैन रेफर देयर books also and their handouts also, right? Especially for the quants, not for the DLR. And for let's say VRC या तुम्हें general advice कुछ चाहिए, then again you can just tag me in the group and you can ask. Cool. Yes, sir. Thank you. Now let's go to the DLR. Okay.
Sir, there is a message on in chat. Please check it out from someone. Till which month the syllabus of QA will be covered? August. हाँ हो जाना देखो अथर see first we will be starting with the arithmetic section, right? And arithmetic, like see, we can cover the entire arithmetic in the next 2 months for sure, right? And but uh, I never ever form these type of targets जो कि time based रहते हैं, because we know that we have 9 months. So even if we are let's say, generally I think the syllabus should be completed till August for sure. But if let's say if we extend it to the September or let's say October also, तो मीनवाइल वी विल बी डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस इस वजह से डिले हो रहा है बिकॉज क्लासेस ही नहीं हो रही है ना, बिकॉज मेरी तरफ से एफर्ट्स ही नहीं आ रहे, वैसा कभी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अरिथमेटिक में हम 2 months की जगह 3 months ले रहे हैं, then you will also realize we will be doing a lot of advanced stuff also, right? So हमारा मोटिव कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट? हाँ, हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई एम डूइंग टाइम एंड वर्क, नाउ व्हेन इट कम्स टू टाइम एंड वर्क, जब हमने वो चीज स्टार्ट कर ली तो वो मैटर नहीं करेगा हमें कितना टाइम लग रहा है, हमें 1 महीना लग रहा है, 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं फॉर वन पर्टिकुलर टॉपिक. वी विल मेक श्योर कि हमें वो टॉपिक के अराउंड सब कुछ आ जाता है, राइट? एंड ऑब्वियसली यार आई नो दैट वी हैव 9 months, राइट? टू मच ऑफ द टाइम. बट ऑब्वियसली आई हैव सम थिंग्स इन माइंड. ऐसा नहीं है कि मैं आपको अक्टूबर तक सिलेबस ही खींचता चला जाऊंगा, बिकॉज वी विल हैव टू स्टार्ट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट? तो मेरा मेन टारगेट यही है कि अगस्त तक व्हाट आई बिलीव इज, सी नाउ इट्स फेब, लेट्स से हम मार्च से भी मानो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 6 months है ना, तो 6 months में तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डू लेट्स से 80 to 100% ऑफ द सिलेबस बाय अगस्त. और मेन फिर अगस्त से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, मॉक्स 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 एंड योर पर्सनल स्ट्रेटेजी सेशंस. बिकॉज अगस्त में आके भी कभी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने का पूरा सिलेबस नहीं हुआ, या जिन्होंने सिलेबस कर लिया उनको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए. तो आफ्टर दैट वी विल डिसाइड कि किस टाइप के सेशंस करने हैं, रिवीजन सेशंस करने हैं, मॉक सेशन करने हैं, बेसिक सेशन करने हैं, एडवांस सेशन करने हैं, तो वो सब हमें वहां तक करेंगे. बट यस, आई थिंक टिल अगस्त यू कैन एक्सपेक्ट 80 to 100% ऑफ द सिलेबस टू बी कवर्ड. ठीक है, वी विल डिस्कस दैट इन द फर्स्ट क्लास, चिराग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. फॉर द वीआरसी वी विल डिस्कस दैट आल्सो, राइट? वीआरसी के लिए बेसिकली यार देखो, वीआरसी, व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड वीआरसी इन दिस कोर्स, द मेन रीजन इज कि वीआरसी में इफ यू आस्क लेट्स से थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स आल्सो, नो वन इज सेटिस्फाइड विद देयर वीआरसी मेंटोर, राइट? So far I am satisfied with the Jizo, right? There is no paid partnership, right? But personally I like the Jizo, the way he teaches, right? And I would say कि uh, you can just access his previous sessions, or maybe just find him on the YouTube, and then you can make a choice whether you want to go for that particular stuff or not. But VRC के लिए जनरली जो होता है यार, वो प्रैक्टिस बेस्ड ही होता है, राइट? है ना, प्रैक्टिस बेस्ड, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे और उतना ही आपका गेम इंप्रूव होगा. बट आई नो दैट इफ यू आर ए स्टार्टर और इफ यू आर ए फ्रेशर, तो मे बी आपको लगेगा कि वीआरसी में भी आपको हेल्प चाहिए. तो फॉर दैट, how would I suggest? The point is that I have a lot of suggestions, but I might not get time for the VRC to suggest you the things. But what I will do is that I will make a separate video for the VRC, especially for the course students. कि अगर आप VRC खुद से prepare कर रहे हो, या if you are looking help for the VRC, what things you should do on a daily basis, and what type of teachers you can consider. And I think you will be able to find a lot of individual courses for the VRC also. But VRC, in a simple statement, if I put, VRC is 90% your practice and 10% is your मेंटर्स रोल इन दैट, राइट? आपको प्रैक्टिस से ही इंप्रूव करना पड़ेगा. एंड दैट आई विल डिस्कस ऑल द डिटेल्स इन द लॉन्ग वीडियो फॉर द वीआरसी, राइट? हाँ, उसका जब कोर्स लॉन्च होगा देन, एंड मे बी इफ यू कैन सजेस्ट मी सम अदर टीचर्स ऑल्सो, what we can do is that we can try to have partnership with them. तो मे बी आपको कुछ उसमें डिस्काउंट मिल जाए, एंड इट इज कम्प्लीटली अप टू यू. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कोर्स, राइट? यू कैन सजेस्ट मी 3-4 डिफरेंट टीचर्स. आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम. उन्होंने अगर सोचा कि हमें डिस्काउंट मिल जाएगा तो ठीक है, ऑब्वियसली इट्स बेस्ट फॉर यू, राइट? बट अदरवाइज आई विल शेयर डिटेल्ड वीडियो फॉर द वीआरसी, जो आप रेफर कर सकते हो if you are starting with the preparation, right? And as I have already told you कि from the last 3 years I have been scoring 99 plus in the VRC, and you will not believe that in this year, like I had zero motivation, right? I failed the form, that's why I had to go to the CAT center. तो मैं वहां पे गया, I did the entire VRC section in the 20 minutes,
right? And I don't have any explanation for that. I don't know how I did it. Not in the 20 minutes, sorry, it was around 25 minutes, right? So I did it in 25 minutes, and I was expecting minus score, right? Negative score, because the choices that I made, right? I took very less time for that, but eventually I landed up at 99 plus percentile. So I think there is something in me, or I have got some sense of the VRC, the logic, right? And what I would say is that VRC is not completely about having a very strong hold over the English subject, right? Over the complex vocabularies or the foreign words, right? It is more orient I would say it is more sort of related to the logic, like मतलब जैसा DLR में आपको एक logic होता है, क्वांट्स में logic होता है, over time when you practice a lot of sets, the RC sets, तो आपको लगेगा कि यार एक एलिमिनेशन करने का एक वे होता है, एक सिलेक्शन करने का वे होता है, तो जब आप वो क्रैक कर लोगे, then the things will become very easy for you, right? चलो चलो ठीक है. All right, let's start with the DLR, right? Let's understand the syllabus for the DLR first, right? DLR में देखो काफी पहले टॉपिक वाइज सेट्स होते टॉपिक वाइज चीजें होती हैं. लेट्स से फर्स्ट इज अरेंजमेंट, जहाँ पे आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, देन सेट थ्योरी में 3 सेट वेन डायग्राम, 4 सेट वेन डायग्राम, एंड दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जहाँ पे लॉट ऑफ स्टूडेंट डू स्ट्रगल. देन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, यहाँ पे भी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू स्ट्रगल, ठीक है. रूट्स एंड नेटवर्क्स, देन बाइनरी लॉजिक, देन गॉड नोस, राइट? उसके बाद सेट कहीं से भी आ जाता है. जनरली दीज आर लेट्स से 4 to 5 टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स होते हैं, राइट? जिनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. बट इन द लास्ट 3-4 years द DLR एज ए सब्जेक्ट हैज इवॉल्व्ड सो मच कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नोबडी नोज कि सेट कहाँ से आ जाएगा. कभी मीन मोड मीडियन से सेट आ जाता है, कभी बहुत जनरल सेट आ जाता है, कहीं से भी वो सेट. बेसिकली दे क्रिएट अ स्टोरी, and in that story they delete some information, and then your only objective is to find the hidden information or the deleted information. That is how the DLR works, right? So DLR में basically when it comes to our DLR 99 course, right, I can for sure say कि ये कोर्स के बाहर आपको आंख भी उठा के कहीं नहीं देखनी. नो यूट्यूब, नो सोशल मीडिया, नो टॉपर, नथिंग एट ऑल. DLR 99 का अगर आपने 70% सिलेबस भी कर लिया, जस्ट 70%, नॉट इवन 100%, राइट? आई कैन फॉर श्योर से कि आपको नॉलेज वाइज, प्रैक्टिस वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज कहीं भी आपको कोई भी कमी नहीं आएगी, फॉर श्योर. So you can completely rely on the DLR 99 for your practice, for your conceptual clarity. And ये कोर्स को जैसे हम रन करेंगे, वो एक डिफरेंट वे होगा, राइट? एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो योर वीकली टारगेट. यू विल गेट वीकली टारगेट कि आपको आज इतने सेट्स करने हैं, ये कॉन्सेप्चुअल लेसन करना है, ये असाइनमेंट करनी है, राइट? एंड यू हैव टू डू दैट. दैट्स इट. ठीक है. देन लेट्स सी द कैट पैटर्न, राइट? जनरली कैट का जो DLR का पैटर्न है थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है हर साल. कभी 4 सेट्स आ जाते हैं, कभी 5 सेट्स आ जाते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दो सेट्स इन 40 minutes. Not a speed game at all. This was true for the quants, but here I would say it is a speed game also, right? Because you will realize कि काफी बार आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सेट सोल्व करने में, एंड in the starting you may take 60 minutes, 70 minutes to solve a set which deserves or which needs to be solved in 15 minutes, right? And that's a very very I would say common thing, right? Because अगर आज आप सेट 15 मिनट में सोल्व कर रहे हो, तो in the next 9 months what will you improve, right? अगर आप आज ही 15 मिनट में सेट सोल्व कर रहे हो, right, then there is no point in doing anything for the next 9 months, right? So it's completely okay if you are taking 60 to 70 minutes also, and it's completely okay if you are not able to solve the set after spending 60-70 minutes also, right? तो हमारा मोटिव यही है कि ये 60-70 मिनट्स को 15 मिनट्स विद श्योरिटी लेके जाना है, बस. दैट्स इट. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है. एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, राइट? इट हैपेंस विद मी आल्सो, विद अ लॉट ऑफ अदर कैंडिडेट्स आल्सो, कि DLR में लास्ट में 90% सेट सोल्व करने के बाद आंसर नहीं निकलता. बट सिंस वी आर डन विद द 90% ऑफ द सेट, वी फील एन अर्जेंसी कि यार अब तो ऑप्शन मार्क करने ही करने हैं. तो फिर वो नर्वसनेस में, वो प्रेशर में हम कुछ भी मार्क कर देते हैं.
सो वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, और डीएलआर में एक एक मार्क्स के साथ, है ना, एक एक मार्क्स के साथ आपका बहुत परसेंटाइल भी चेंज होता है, राइट? सो एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट इन दिस सेक्शन, राइट? Not easy to predict, not easy to score, right? Let me make it very clear. This is one of the sections where a lot of students from any background struggle a lot, right? And प्रेडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता डीएलआर का सेक्शन, ना ही तो इसकी डिफिकल्टी प्रेडिक्ट होती है। बहुत बार बहुत हार्ड भी आ जाता है, बहुत बार बहुत इजी भी आ जाता है। इवन इन वन पेपर यू मे फेस difficulties in one type of set, and you may be able to crack other type of set within 10 minutes. इवन इन 1 year ऑल्सो आप देख रहे होगे कि एक स्लोट का डीएलआर थोड़ा डुएबल आ जाता है, एक स्लोट का बहुत हार्ड भी आ जाता है, एंड स्लोट 3 इज वेरी वेल नोन फॉर दीज थिंग्स, राइट? तो इट्स नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, एंड ऑल्सो इट्स नॉट वेरी इजी टू स्कोर इन द डीएलआर, राइट? वहां पे बहुत कुछ मैटर करता है ऑन द डी डे व्हेन इट कम्स टू द डीएलआर, right? High duplicity in questions? No, there is no high duplicity. It was true for the quants, but DLR में every year you will find new concepts, new logic, new type of questions, new type of problems, right? So यहाँ पे आपका मोटिव क्या होना चाहिए? Not to crack the pattern, not to see the duplicity, जो हम क्यूए में कर रहे थे। यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए किस पे फोकस होना चाहिए? कि हम खुद को ऐसा बना लें कि कोई भी सेट हमारा कितना भी नया सेट हो, कितनी भी नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे, है ना, वी विल बी एबल टू क्रैक दैट टाइप ऑफ सेट। वी शुड बी एज डायनेमिक एज पॉसिबल, राइट? हमने सेट देखा, सेट को समझा, और हमने सेट पे प्ले किया, हमने अपनी नॉलेज पे प्ले नहीं किया। आपको जो नॉलेज डीएलआर में मिलेगी वो सिर्फ मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग न्यू सेट और हैंडलिंग द न्यू सेट, दैट्स इट, राइट? बिकॉज एज आई टॉक्ड अबाउट कि टॉपिक से बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, राइट? न्यू टाइप्स की प्रॉब्लम्स, न्यू टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ज्यादा आते हैं, राइट? 99 मैटर्स लेस, राइट? बिकॉज एक एक दो दो तीन तीन मार्क्स पे, एक क्वेश्चन पे, दो क्वेश्चन में आपकी परसेंटेज चेंज होती रहती है। सो डीएलआर में सबसे पहले तो आपको क्या करना है? आपको पहले मेक श्योर करना है कि यू आर क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ। A lot of students fail to clear the sectional cutoff, even very the students who are very good at it, right? I have prepared very well for the DLR in 2021, and I have scored 64 percentile in the DLR, right? Next year I scored 99.9. That's a different thing. But what I'm trying to say is 99 पे फोकस नहीं करना, पहले फोकस करना है टू हैव द कंसिस्टेंसी इन दिस पार्ट। भाई मुझे जितना भी टिपिकल कोई भी डिफिकल्ट सेक्शन दे दो, कितना भी डिफिकल्ट सेट दे दो, फर्स्ट आई विल मेक श्योर कि जितने भी मैं मॉक्स दूंगा, सब में मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो। सेक्शनल कट ऑफ के बाद मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगा, राइट? दैट्स हाउ यू शुड गो फॉर द डीएलआर। बिकॉज डीएलआर में 4-5 सेट्स होते हैं तो चांस बहुत कम होता है। क्वांट्स में क्या है कि पहले 5 क्वेश्चन इग्नोर कर दो, 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दो, स्टिल यू विल बी लेफ्ट विद 15 क्वेश्चंस, राइट? बट डीएलआर में ऐसे नहीं होता, पहले 2 सेट नहीं करोगे तो प्रेशर आ जाता है, नर्वस हो जाता है बंदा, राइट? एंड logic works well with patience, calmness, strategy, right? Right, you will be going with the same amount of knowledge with the same person, right? That is you only. But even if you want to crack that set, you need patience, you need calmness, you need strategy. नर्वस होके चीजें करोगे नहीं वर्क करती डीएलआर में, right? So these are some of the things that you will realize over time, right? I mean, all these things will make sense to you after 4 to 5 months, but मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, right? And everyone struggles here. So if in the, let's say, in the next 3 to 4 months, if you're struggling a lot in this section, that is completely okay, right? Don't worry about that. Make sure that you are learning a lot of things from each attempt, from each type of set. That's what matters in the DLR, right? Let's discuss what would be our plan for the DLR. First is we have the best plan, right? As I've already discussed, DLR 99 के लिए you don't need to go anywhere else, right? You can completely rely on the DLR 99 course, right? Again, I repeat, this is the best course. You have to believe in that, because this course will make you practice a lot of sets, a lot of new types of sets, and I'm pretty sure no one will be able to do 100% of the course, right? Because the course is quite extensive, right? It needs a lot of motivation, a lot of efforts from your side, but that's okay. Even if you're able to do 70 to 80% of the set, that's okay, right? अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसी चीजें चलेंगी। पहले आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी, राइट? एंड दिस विल बी मोस्टली रिकॉर्डेड, एंड फ्यू विल बी लाइव।
Now a lot of students will say ki sir, why recorded, why not live? So there are multiple reasons for this. देखो recorded में क्या होगा ना कि let's say recorded and live are basically the same things, right? उसमें कुछ ऐसे difference नहीं होगा. But होता क्या है ना, देखो पहले मैं let's say पहले 20-30 मिनट्स में मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है अरेंजमेंट के around, right? After that, we will start solving the sets, basic set, advanced level sets in the class. अब उसमें होता क्या है ना कि अगर मैं सेट वहां पे सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट आई हैव टू गिव 20-30 मिनट्स टू यू टू ट्राई दैट सेट आउट, राइट? फिर आप 20-30 मिनट्स वो सेट को ट्राई करोगे, देन आई विल शो यू हाउ आई सोल्व दैट सेट, राइट? सो अगर हम ऐसे 20-30 मिनट्स पर सेट करने लग गए, सो इन ए 2 आवर क्लास वी विल बी एबल टू सोल्व जस्ट 3 सेट्स, मैक्स टू मैक्स 3 सेट्स, उसके उससे ज्यादा सेट हम नहीं कर सकेंगे, राइट? बट रिकॉर्डेड में क्या होगा, आई विल आस्क यू कि स्टॉप द क्लास और पॉज द क्लास, डू द सेट फॉर द 20-30 मिनट्स, देन रिज्यूम द क्लास टू सी द सॉल्यूशन. तो इसमें क्या होता है रिकॉर्डेड में, इन अ 2 आवर क्लास we will be able to we will be able to do at least 5 to 6 sets, right? Or depending on the conceptual clarity we can have multiple classes for a session. But उसके बाद हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, again that is very important. Just give me a minute. हाँ, उसके बाद क्या होगा ना, सेम लाइक क्वांट्स यू विल गेट वन असाइनमेंट, राइट? कॉन्सेप्चुअल क्लास के बाद असाइनमेंट होगी. असाइनमेंट में देयर विल बी 5-6 sets, 5-6 sets. You need to practice that set, and then we will have live session for this. अब इसका लाइव सेशन क्यों होगा? बिकॉज आपने सेट्स को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया, आपको ऑलरेडी आइडिया है क्या सेट्स है. नाउ यू हैव टू जस्ट सी हाउ आई सोल्व दैट सेट और व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग कैन यू गेट आउट ऑफ दोज सेट्स. सो वी विल हैव लाइव सेशन फॉर दिस पार्ट, राइट? बट आपको वीकली टारगेट मिलते रहेंगे कि आज आपको ये कवर करना है, ये सेट अटेम्प्ट करना है, ये रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है, ये लाइव क्लास देखनी है, वो सब आपको मिलता रहेगा. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट? असाइनमेंट का आई हैव डिस्कस्ड. देन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जहां पे आपका असली खेल स्टार्ट होगा. फॉर एवरी टॉपिक वी विल हैव 15, 20, 25, 30 सेट्स डिपेंडिंग ऑन द type of topic we are doing. For example, arrangement में we have 25 timed test, right? And all the sets are cat level, right? Because basic का हमें conceptual classes से idea हो जाएगा. We will not be spending a lot of time in basic set because basic set ना तो कोई पूछता है ना ही वो help करता है. तो from the very beginning, right, we will be focusing on the कैट लेवल सेट्स, जहां पे आपको टाइम क्विज में, राइट, एक टाइमर चल रहा होगा, उस टाइमर के बीच आपको सेट सोल्व करना है. एंड ईच एंड एवरी सेट विल बी फॉलोड बाय अ वीडियो सॉल्यूशन जो आपको वहां पे दिया होगा. आपको फिर वीडियो सॉल्यूशन चेक करना है, राइट? एंड यू विल बी अगेन इन्फॉर्म्ड कि आपको कौन सा सेट कब किस डे पे करना है, राइट? एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्विजेस, अराउंड 500 quizzes will be there that you have to attempt throughout the course, right? And advanced level sets as I've already discussed. Then there will be sectionals, वो बात की चीज है. तो there as of now there are 10 sectionals, but अगर practice आपको और करनी होगी during the months of September, तो then I will add 20 more sectionals, so in total you will have 30 sectionals. तो sectional पे आपको quants और DLR के लिए time देना किसी और से बाय करना जरूरी नहीं है. वीआरसी के लिए आई विल सी कि अगर मैं कुछ फ्री मटेरियल अपलोड कर पाऊंगा तो आई विल डू दैट फॉर श्योर, राइट? या यू कैन सजेस्ट मी कि अगर कुछ करना है तो फॉर द वीआरसी वी विल फिगर आउट द थिंग्स, राइट? गाइडेंस प्लस चिट चैट सपोर्ट. सी दिस पॉइंट आई हैव नॉट डिस्कस्ड इन द क्वांट्स, बट डीएलआर में ये बहुत जरूरी है. बिकॉज डीएलआर में एज आई हैव डिस्कस की सेट्स बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, न्यू वैरायटी के आते हैं. तो यहाँ पे गाइडेंस आपको बहुत जरूरी है, राइट? ए लॉट ऑफ डेज विल बी देयर जहां पे आपने लेट्स से 100 सेट्स को कर लिया, 200 सेट्स को कर लिया, देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग anything, you are not getting marks, you are not able to speed up, right? Then you have to come to me, you have to put a message ki sir these are the things that are not working, we want Zoom session from your side, right? Tell us. And the query can be as simple as कि सर मैं नर्वस हो जाती हूँ, मैं सेट को देख के एकदम नर्वस हो जाती हूँ, बट आफ्टर द सेट आई एम एबल टू डू दैट, राइट? तो वो भी चीज हो जाती है, राइट? तो वो भी हमें यहाँ पे वो बहुत जरूरी है कि आपको कांस्टेंट एक स्पोर्ट मटेरियल, एक स्पोर्ट सिस्टम मिलता रहे, right? Requires 200% efforts from both side, right? I have already started creating the sets video solutions, and believe me it takes a lot of time. But if you want to excel this subject, you have to just follow our plan, and that's it. You have to just give efforts to whatever things we ask
you, right? And वहां पे अगर आप करोगे, then obviously you will see the results also, right? ठीक है. Then important gyan again for this section, be ready to cry, right? There is no one, probably no one who starts very well with a DLR. Everyone faces, or everyone has their own challenges when it comes to the DLR. So everyone cries, but over the time you will see how to tackle the sets, how to tackle the situations. So it's okay if, let's say, in the first few months the things are not working for you, right? This section still gives me chill, right? So ऐसा नहीं है कि I have solved thousands of sets, so now I can solve each and every type of set. It doesn't work like that. So this is pure a mental and strategy game. रिक्वायर्स वन टू मेक हिज हर ओन स्ट्रेटेजी. सो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीज काम करती है कि आपको किसी की स्ट्रेटेजी सोचने की, देखने की जरूरत नहीं है. यू कैन हैव रैंडम ज्ञान, बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली यू हैव टू फॉर्म योर स्ट्रेटेजी कि आपको सेट कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे नहीं करना. अगेन दीज थिंग्स विल मेक मोर सेंस व्हेन इट कम्स टू द मॉक्स. You learn every day from each type of set. Avoid failure, protect ace. This is the thing that I have already discussed कि avoid failure. पहले तो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट, है ना? प्रोटेक्ट में अगेन आपको ही एक्यूरेसी को देखना है ना, कौन सा सेट सिलेक्ट करना है. उसके बाद देन आपको फोकस करना है कि आपको एग्जाम में 99 लाना है, राइट? सो यू हैव टू फॉलो दिस थ्री थिंग्स. कूल. सो द नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ लर्निंग मैटर्स. सो बहुत बहुत लोगों को लगता है कि मैं 1000 सेट्स कर लूंगा, 2000 सेट्स कर लूंगा, 3000 सेट्स कर लूंगा, 4000 सेट्स कर लूंगा तो मेरा डीएलआर इंप्रूव हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. क्वालिटी मैटर्स देन द क्वांटिटी, राइट? एंड avoid YouTube videos. That is my clear suggestion, right? I know there are 5,000 videos, 10,000 videos, and there are hundreds of videos that are daily coming to the YouTube on different channels. But personally, what I believe is that YouTube never works for the DLR because it does not put you on the side of having that pressure. There is no timer, and over the time you will realize कि आप बस वीडियो को देखते हो, चलाते हो. There is no consistency, and you don't practice the set on your own. So first, I will make sure कि before every set, before every solution, you practice that set in the timed manner, and then you see the solution. सो ये एक आपकी हैबिट जो यूट्यूब है वो खराब कर देता है. तो वो वहां पे, आई मीन, इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द कोर्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द यूट्यूब वीडियोस, राइट? अगेन आई वांट टू मेक श्योर कि 2 सेट्स प्रैक्टिस are more valuable, have more worth than watching 10 sets videos, right? What do I mean is कि अगर 2 सेट तसल्ली से आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, वो बेटर है rather than watching 10 वीडियो सॉल्यूशंस without practicing those type of sets, right? तो फर्स्ट आपको पेन पेपर पे उसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है. इफ यू आर गोइंग थ्रू अवर कोर्स और गोइंग थ्रू द यूट्यूब वीडियोस, दिस इज द सेम स्ट्रेटेजी, राइट? एंड now some things that you need to keep in mind, things to avoid, at least before the cat profile evaluation. Don't fall for such things, because now whatever has been done has done. So you don't need to focus on the profile कि मेरा ये profile है, इस पे cat निकलेगा नहीं करेगा. When you have already decided कि आपको cat देना है, then these things do not matter because you can't change the things, right? If you are already in some college, if you can be a topper, if you can increase your marks, obviously focus on that. That is a simple thing. एंड सेल्फ डाउट, डोंट फील एवर कि आपका क्वांट स्ट्रांग नहीं है, आपका 10th क्लास से आपने मैथ्स में टच में नहीं हो, आपके एकेडमिक्स बहुत पुअर हैं, तो क्या मैं 99 ला भी सकता हूँ, राइट? इवन इफ यू हैव 666 555 प्रोफाइल, स्टिल you can get 99 because you got the best material and you have the right sport, right? So it's completely, I would say, achievable, right? So please don't fall into this trap also, right? Then job versus gap, don't do this thing. अगर आपने already gap ले लिया है तो let's focus on the CAT preparation only. अगर आप job पे हो तो please focus on the job as well as on the CAT preparation. सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी कुछ इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्या कॉलेज का क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है. फर्स्ट अवर मोटिव शुड बी टू एस द कैट, टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल. देन देखेंगे क्या कॉलेज से क्या कॉल आ रही है, राइट? सोशल मीडिया को अवॉइड कर सकते हो. इट्स वेरी हार्ड फॉर मी एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ यू, बट you as an aspirant, I think you should have a check on how much time you are spending on the social media. So please cut that time and start investing that time on our portal for our classes. Things you may ask, how to balance, right? A lot of students struggle कि तीनों सब्जेक्ट कैसे करना है, ये चीज कैसे करनी है. बट एट द स्टार्ट डोंट एक्सपेक्ट कि स्टार्टिंग पे पूछने लग जाओ हाउ टू बैलेंस, राइट? एट द स्टार्ट वी विल हैव वेरी लेस थिंग्स टू कवर. सो
थोड़ा chill रहेगा, right? But after a point, you can ask, right? How to put more number of hours? I would be happy to answer that. If you are saying, sir, I am just doing 3 hours per day, but I want to increase it to 5 hours per day, can you help me? I would be surely helping in that area. uh, Things you may ask, what is as I discussed, what is the best material if I want to practice more and more things. Things you may ask after a point when mocks come, right? What should be my strategy to attempt the quant section or the DLR section? Fine, thank you. This is one quote that I want you uh, to have along with your journey. Push yourself because no one else is going to do it for you, right? And this hits very hard to me because when it comes to, let's say, family support, income, or what I would say, uh, financial stability, maybe your family can support you to an extent. आपको वो सब दे देंगे, right? आपको कुछ भी resources required है, emotional, social well-being, you can get everything from your surroundings, right? From your friends, from your family. But if you want if you want a stable career, if you want to uh, achieve greater heights in your career, right, then you have to push yourself, right? अगर आप कैट नहीं देने जाओगे तो आपकी आपकी जगह पे कोई और नहीं दे सकता. Your parents can't study um, on behalf of you. So that are some of the things that you have to do it, that you have to push yourself for that. And don't worry, we have 9 months. You have best material, you have best mentor, and you have best version of yourself. So you don't have to worry about all those things. That's it for today's session, right? And now if you have any doubts, please you can unmute and you can ask, and be active on So, Telegram. Subscribe. Yeah. sir, I just wanted to ask if there will be weekly or daily targets for QA too. There will be weekly targets. I mean, daily targets do not make sense, right? I will not be asking you daily to do this, to do that, right? But we will have weekly targets, like you have to do this many questions, you have to do this many topics by this week, and that I will be putting on the WhatsApp. अभी WhatsApp group एक बन जाएगा, and that will be updated by tomorrow in the Telegram and on the portal also, right? And that the purpose of that group will be only to पोस्ट द अनाउंसमेंट्स और द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. बाकी जो आपका सारी चीजें है वो टेलीग्राम पे ही चलेगी. And yes, one more thing related to the recording. Recording of the classes will be uploaded on your portal within the next 24 hours. So you don't have to worry about that. Whenever a class is scheduled, you will be announced 2-3 days before that, right? Last year, there was no chance, there was no event when I cancelled the class or when I shifted the class. But there may be some days when I might not be feeling that well, or I may have to cancel or shift the class. So in just 2 or 3% of the cases you can expect that type of thing, but in 98 or 97% of the cases the classes will go as planned, right? And you will be informed about that 2-3 days before. uh, if there is a class, so most of the time I will try to conduct the class on the weekends only, so that you can have a lot of time, right, to attend the class. You are not tired, right? And in case there is a weekday class, then the class timing will be post 9 p.m. only, because I expect ki at least a lot of janta, a lot of people reach their home by 9 p.m., right? And but most of the classes, majority of the classes will happen on the weekends only or holidays, right? Weekends or holidays. And weekend पे अगर class होगी, time could be anything, but generally I keep the classes at evening or at night only, right? Morning में I know a lot of students do not wake up, including me. So that's how the things will go. And also whatever queries you have, please post it in the group only, so that everyone can get something out of it. Please do not DM. You can DM, but the point is then only you will be getting benefit out of that and no other person will get. That is the simple logic. uh, Class duration generally it's around 2 hours. I mean, over time, see, if you're consistent, you can cover 100% of the syllabus. But the point that I wanted to make is that after 60 to 70% of the syllabus coverage or the portal coverage, you will get a clarity कि आपको कितना syllabus और करना है, कहाँ से चीजें करनी है.
So you will be at a very good stage after covering 60 to 70% of the syllabus, right? Timing of the class, as I've already discussed, 9 p.m. or 10 p.m. ही होगा, right? And weekend generally 9 p.m. or 10 p.m. ही होगा, right? Weekend पे maybe there may be some classes at evening, but mostly it will be around 9 p.m. or 10 p.m. only. So you don't need to be worried about that. Yes, you don't need to worry about all these things, right? देखो generally होता क्या है, when it comes to number of classes, right? If you typically enroll in some coaching, right? So a lot of coaching say that they have six classes per week, two for VRC, right? Two for DLR and two for quants, right? So they spread it out from Monday to Saturday, and some coachings have Friday, Saturday, Sunday, right? So, but a lot of students or a lot of professionals, right, work on the weekdays. So that's why we will have classes on the weekends only, right? We can have weekdays classes, but the point is then the attendance will be very low, right? And the number of classes, right, again, as I said, there is no fixed time period or the number of classes, but that depends on how much syllabus we are covering and how much pace the group is comfortable with, right? With how much pace the group is comfortable with, because that depends on all the other things. But generally, if you are having two QA classes per week, that would be more than sufficient, to be honest, right? Baki then you have to focus on practice for DLR, VRC and the quants. बाकी उसका मैं बताऊँ कब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कब क्लास होगी, everything will be told to you in advance, so you don't need to worry about that. Yeah, Anjali, I mean, you will keep getting update on the WhatsApp for every week, right? So you don't need to be worried about that. But whenever there is weekend, you can expect that there will be notification. Around Thursday, आपको notification आ जाएगा कि how many classes you will have. And you don't believe me, you don't need to be worried about all these things. दो classes होंगी, पांच होंगी, चार होंगी. You will be very well informed and your schedule will be taken care of. Right. आपको सिलेबस हम बहुत पहले खत्म कर देंगे, उसका भी टेंशन मत लो, राइट? मे बी by the July or August we will wrap it up, and after that we will focus on revision part and the PYQ. But there is one thing that is very sure ki you will have classes till November. So it's not like ki the moment we stop the or we cover the syllabus, the coaching will not be closed, right? I will be available for you and the classes will also keep happening. चलो जी, cool. Can we call it a day? Okay, fine. Thank you. Bye bye.